اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا نام جن ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور وہ اپنے مادے کی لطافت کے سبب ایسی قوت اختیار کرتے ہیں کہ حسب منشا ہر صورت میں متشکل ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نار سموم کو پیدا کیا۔ یہ وہ آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا، اور اسی آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ دینار ایک جن زادی کی پر اسرار داستان ہے۔ پھر زنوبیہ 4 گھوڑوں والے رتھ میں محل سے نکلی، اور رتھ کے ساتھ حاکم و تدمر ازینہ کے محافظوں کا خصوصی دستہ تھا۔ راستے میں اونچی عظیم و شان سنگی محراب نظر آئی، اور یہ لال دیوتا کے معبد کی محراب تھی، اور لال کا معبد ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا، اور محراب سے آگے ستونوں والا بازار تھا، اور یہ بازار 1240 گز لمبا تھا، اور گویا پورے شہر کا مرکز تھا۔ یہاں سے مختلف چھوٹی چھوٹی گلیاں آبادیوں میں داخل ہوتی تھیں، اور اس حصے میں 375 سے زیادہ ستون تھے، اور ہر ستون 55 ہاتھ سے زیادہ بلند تھا، اور زیادہ تر ستون گلابی پتھر کے تھے، اور چند ستون سنگ خارا کے، اور ان میں نیلے نیلے دھبے پڑے ہوئے تھے، اور یہ پتھر مصر کی شاہراہ سوان سے منگائے گئے تھے، اور کہیں کہیں تدمری سنگ سراشوں کے شاہکار مجسمے بھی نصب تھے، اور مجسموں کا چہرہ پوری طرح سے نظر آتا تھا، اور کندھوں پر کتبے لگے ہوئے تھے، اور ان میں تدمر کے سلاطین اور عمرہ کو یقینی یونانی لباس میں پہنے دیکھا گیا تھا۔ ایک مجسمے کے قدموں میں 2 ساقی بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور ایک ساقی پار تھی اور لباس پہنا تھا، اور دوسرا رومی لباس میں تھا۔ اور زنوبیہ نے بغل دیوتا کے معبد کے پاس رتھ رکوا لیا، اور رتھ سے اتر کر وہ بغل دیوتا کا شکرانہ ادا کرنے گئی، اور اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے معبد کے باہر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ سپاہیوں نے بڑی مشکل سے راستہ صاف کیا تو زنوبیہ معبد سے رتھ تک پہنچی، اور لوگ محافظوں کے کوڑے کھانے کے باوجود ملکہ کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو رہے تھے۔ شاہی رتھ تدمر کے بڑے قید خانے تک پہنچ گیا، اور محافظ دستے کے سالار نے قید خانے کے نگران کو لونگی نوس کا رہائی نامہ دکھایا، اور پھر زنوبیہ نفس نفیذ لونگی نوس کی کوٹری میں پہنچی، اور لونگی نوس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، اور دوسرے ہی لمحے حیرت میں مسرت کا رنگ بھی شامل ہو گیا۔ زنوبیہ کے اشارے پر زندہ کے لوہار نے قیدی کی زنجیر کاٹ دی، اور لونگی نوس جیسے کسی خواب کے عالم میں زنوبیہ کے ساتھ قید خانے سے نکلا۔ محافظ دستے کے ایک سپاہی نے اسے سواری کے لیے اپنا گھوڑا پیش کرنا چاہا، لیکن زنوبیہ نے اسے روک دیا، اور لونگی نوس کو اپنے ساتھ رتھ میں بٹھا لیا۔ ازینہ نے لونگی کو جنگی حالات سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا، اور کہا، اور ہمارا خیال ہے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں روم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ غداری ہوگی، کیونکہ سروست تدمر کو روم سے کوئی شکایت نہیں، اور نیز اگر مثلتاً ایران سے وقتی مفاہمت کر بھی لی جائے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ ایران آئندہ تدمر کی آزاد و خود مختار حیثیت برقرار رہنے دے گا؟ یقیناً، لونگی نوس نے کہا، اور ایران سے یہ توقع فضول ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ روم کی حمایت میں ایران سے جنگ کی جائے۔ کیوں؟ اور ازینہ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ جی ہاں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور پھر قومی حمایت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور لونگی نوس نے رائے ظاہر کی۔ لیکن لونگی نوس، ہمارے پاس فوج بہت کم ہے، اور ہم ایران کے لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ اقدام خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تسلیم کے تدمر کے پاس سپاہیوں کی کمی ہے، لیکن کیا آدمیوں کی بھی کمی ہے؟ نہیں، آدمی صرف آدمی ہوتا ہے، اور سپاہی ایک ہتھیار بھی ہوتا ہے۔ کیا آدمیوں کو سپاہیوں میں نہیں بدلا جا سکتا؟ اور اس کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔ موت سر پر کھڑی ہو تو آدمی کو سپاہی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، یعنی ہنگامی حالت کا اعلان کر کے ریاست میں جبری بھرتی کا آغاز کر دیا جائے، اور یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ جی ہاں، آقا غلام یہی کہنا چاہتے ہیں، اور لڑنے والوں کی مطلوبہ تعداد اسی طرح فراہم ہو سکتی ہے۔ تم بھول رہے ہو لونگی نوس کہ جنگیں تعداد سے نہیں، ہمت اور منصوبہ بندی سے جیتی جاتی ہیں، اور یہ سن لو، لونگی نوس نے اطمینان دلایا کہ منصوبہ سازی کے لیے ریاست کے پاس اعلیٰ دماغوں کی کمی نہیں، اور رہی فوج کی قلت تو میں عرض کروں گا کہ یہ خدمت میرے سپرد کر دی جائے۔ میں بستی بستی گھر گھر جاؤں گا، اور ریاست کے تمام باشندوں کو غفلت کے خواب سے جگاؤں گا، اور میں ان سے کہوں گا کہ ہم وطنوں، اپنی سرزمین کو دشمن کے ناپاک قدموں سے بچاؤ، اور میں انہیں بتاؤں گا کہ جو
قومیں غلام بنا لی جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور لونگی نوز کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بازار، تمہارے محلے اور تمہارے گھر اسی طرح ہنستے بستے رہیں تو اٹھو، میدان جنگ میں چلو اور امن کی خاطر ہمیں جنگ کرنی ہوگی۔ زنوبیہ خوشی سے سب کچھ سن رہی تھی اور لونگی نوز چپ ہوا تو ازینہ نے رائے طلب نظروں سے اسے دیکھا اور زنوبیہ بولی، لونگی نوز کی آواز رکت کی آواز ہے اور اس آواز پر سب سے پہلے ہم لبیک کہتے ہیں، اور اس مہم میں ہم بھی ان کے ساتھ ایک سپاہی بن کر جائیں گے، اور وطن کی حفاظت ہر فرد بشر کا فرض ہے۔ تم ازینہ اپنی شریک حیات کے جذبے سے خاصا متاثر معلوم ہوتا تھا اور پھر بھی استجاب سے بولا، زنوبیہ تم؟ ہاں ہم۔ اور زنوبیہ نے عزم سے کہا کہ لوگ جب ہمیں دیکھیں گے کہ ان کی ملکہ خود ان کے دروازے تک آئی ہے تو وہ گھروں سے نکل آئیں گے۔ اور ازینہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا اور بولا، تم دونوں روانگی کی تیاری کر سکتے ہو۔ دوسرے دن لونگی نوز اور زنوبیہ ملک کے آزمائے ہوئے شہ سواروں کے ساتھ محل کے احاطے سے نکلے۔ ازینہ اور ریاست کے دیگر عمائد انہیں شہر سے باہر تک رخصت کرنے آئے، اور الوداع کہنے والوں میں ازینہ کا برادرز زیادہ ہرمان بھی تھا، اور لونگی نوز اور زنوبیہ ایک ہی رتھ میں سوار تھے، اور انہیں دیکھ کر ہرمان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور اس کے دل کی حالت لونگی نوز کے سوا کوئی نہ جان سکا۔ اور رات کے گھوڑے بدل دیے گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھا دی گئی۔ اب 4 کی بجائے اعلیٰ نسل کے 6 گھوڑے رتھ کھینچ رہے تھے، اور رتھ کے اطراف جنگجو جو گھڑ سواروں کا حالہ تھا۔ یہ پرشکوہ قافلہ دور پوپس نام کے شہر کی سمت روانہ ہو گیا، اور قافلے کو راستے ہی کی ہر بستی میں رکتے ہوئے آگے نکلنا تھا۔ زنوبیہ کا چہرہ کھلا جا رہا تھا جیسے وہ کسی خطرناک مہم پر نہیں، تفریحی سفر پر نکلی ہو، اور اس کے برعکس لونگی نوز کے چہرے پر سنجیدگی سی۔ قافلہ شہر سے دور آ چکا تھا اور لونگی نوز نے زنوبیہ کو مخاطب کیا، ملکہ۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، زنوبیہ نے ایک ادا سے پوچھا، تم ہمیں ملکہ کیوں کہتے ہو لونگی نوز؟ اس لیے کہ آپ ملکہ ہیں۔ درست، مگر ہم زنوبیہ بھی تو ہیں۔ اور لونگی نوز کے ہونٹوں پر لرزش ہوئی، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا، اور تیز رفتاری کے سبب رتھ ہچکولے کھا رہا تھا، اور زنوبیہ ہچکولوں کے ساتھ ڈولتے ہوئے ہنس پڑی، اور لونگی نوز کو ایسے محسوس ہوا جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں اس کی کھنک دار ہنسی کے ساتھ تال دے رہی ہوں، اور وہ از خود رفتہ ہو گیا، اور اس کی آنکھیں مچ گئیں اور اس سے وجد سا آنے لگا، اور نہ جانے کتنا وقت اور کتنا سفر اسی طرح گزر گیا۔ لونگی نوز تم کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں منتظر ہیں۔ اور لونگی نوز سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، پہلی منزل آنے والی ہے، اور اسی اثناء میں آپ اپنے خطاب کی تیاری کر لیجئے، اور میں آپ کو ایک نکتہ خاص طور پر ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ اور زنوبیہ پوری طرح متوجہ ہو گئی تو لونگی نوز نے کہا، لوگوں کے سامنے آپ کو جس بابت پر زور دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عرب ہیں اور ایک غیر عرب قوم نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ ہم سمجھ گئے، زنوبیہ نے اسے اتفاق کیا، اور واقعی تدمر کے باشندوں کے سامنے یہ بات زیادہ کارگر نہیں ہوگی کہ ایران نے روم پر چڑھائی کر دی اور ہمیں روم کے دفاع میں لڑنا ہے۔ جی ہاں، گویا یہ جنگ ایرانیوں اور رومیوں کی نہیں بلکہ عرب اور عجم کی جنگ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تم نے نبض پر صحیح ہاتھ رکھا، اور زنوبیہ کے اندر کا عرب جاگ اٹھا، اور سارے عرب ایک ہیں، کاش سب ایک ہو جائیں، اور یہ قوم کب تک غیروں کے زیر نگی رہے گی؟ زیادہ دیر نہیں۔ اور لونگی نوز نے وثوق سے کہا، اب رات ڈل رہی ہے اور صبح طلوع ہونے والی ہے، اور میں اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنگ غلام عربوں کی آزادی کا نقطہ آغاز ہوگی۔ زنوبیہ کی للکار تاریخ میں عرب قومیت کے لیے بلند ہونے والی پہلی آواز ثابت ہوئی، اور عرب کا صحرا آزادی کے نعروں سے گونجنے لگا۔ زنوبیہ کی شخصیت اور خطابوں نے ملک بھر میں آگ لگا دی، اور بوڑھے بھی جوان ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور لوگ کریے کریے اور شہر شہر سے تدمر جانے لگے۔ اور زنوبیہ کا کارواں دور یورو واپس رصافہ اور دوسرے مقامات سے گزرتا ہوا واپس آیا تو ہزاروں جان سار اس کے ساتھ تھے۔ ازینہ نے محل کے بڑے پھاٹک پر قافلے کا استقبال کیا، اور سپہ سالار زبدہ اور شاہی قصر کا نگران اعلیٰ زبائی بھی ہمراہ تھے، اور زنوبیہ اور لونگی نوز کامیاب و کامران لوٹے تھے، مگر میدان کا جنگ کا نقشہ اب کچھ اور تھا۔ روی فوج اور ہر محاذ پر ایرانیوں سے پسپا ہو رہی تھی، اور رومی شہنشاہ ورین نے ازینہ کو کمک لے کر فوراً محاذ پر پہنچنے کا پیغام دیا تھا، اور ازینہ روانگی کے لیے تیار تھی، اور اس کی خواہش تھی
کہ ज़नूबिया अब तदम्मर में आराम करे, और वो एक तवील दौरे से लौटी थी और लोंगिनोस ने उसकी तजवीज़ कबूल नहीं की और उसका कहना था कि नए भर्ती होने वाले सिपाही ज़नूबिया की सहाराना शख्सियत के ज़ैर असर हैं, इसलिए ज़नूबिया को भी महाद पर मौजूद रहना चाहिए। और अजीना ने यह बात मान ली। ज़नूबिया दोबारा सफ़र पर आमादा हो गई और उसने लोंगिनोस को भी अपने साथ रखने का फ़ैसला कर लिया। जंग अवीसा के मकाम पर हो रही थी और तदम्मर के जाले रजज़े पड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे कि हम अरब हैं और दुश्मन का वार पुश्त पर नहीं सीने पर रुकेंगे। और लश्करों का विलोला नाकाबिल तस्खीर मालूम होता था, मगर जब तक ये लश्कर अवीसा पहुंचा जंग का फैसला हो चुका था। ईरान ने रूम को बदतरीन शिकस्त दी और रूम का शहनशाह देरीन कैदी बना लिया गया था। और इस खबर ने तदम्मर फ़ौज का हौसला पस्त नहीं किया, क्योंकि ये फ़ौज रूम के लिए नहीं अरब के लिए लड़ने आई थी। अजीना तज़ब्ज़ब का शिकार थी कि लोंगिनोस ने आगे बढ़कर हमला करने का मशवरा दिया और ज़नूबी और ज़ुब्दा ने भी लोंगिनोस से इत्तफ़ाक़ किया और ज़ुबाई हमले के हक़ में नहीं था। और लोंगिनोस ने उससे कहा कि अगर हम इस वक्त पीठ दिखाते हैं तो हमें अभी से शिकस्त के लिए तैयार रहना होगा। और ज़ुबाई की समझ में यह बात आ गई और उसने भी तलवार सूंत ली और बोला, हम शहनशाह रूम को दुश्मन की कैद से निकाल कर दम लेंगे। और लश्कर जोश में आगे बढ़ा। ईरानी मुतमिन थे कि शहनशाह रूम की शिकस्त के बाद कोई उनका मुकाबला नहीं करेगा। और ईरान के शहनशाह शाहपुर को जब खबर मिली कि तदम्मर के सहराई पेशकदमी कर रहे हैं तो उसे यकीन नहीं आया। ईरानी अवैसा से आगे बढ़ आए और फतेह का जश्न मना रहे थे और उन्होंने जश्न की बसात लपेटी और साफ बंदी करने लगे। इसी असनाब अरब के ताज़ा दम जवान भूखे बेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़े और अजीना अरबों की क़ियादत कर रहा था। और ज़नूबिया का रथ कल्बे लश्कर में मौजूद था और रथ के साथ साथ लोंगिनोस का घोड़ा चल रहा था। और ईरानियों पर अरबों का हमला बफरे हुए शेरों की मानद था और वह जिस सफ़ में घुस जाते कोहराम मच जाता। और रूमी सपा एक फ़र्द के लिए लड़ी थी, लेकिन अरब पूरी कौम की खातिर लड़ रहे थे। और पहले ही हमले में ईरानियों के कदम उखड़ गए और उन्हें शिकस्त खाकर भागना पड़ा। सहराई उनके पीछे झपटे और ईरानी फौज ने जिस रोमियो को शिकस्त दी थी भाग रही थी और जैसे मौत उनके ताक़ब में हो। और ईरान के दारुल हुकूमत पर सी पुलिस तक उसका ताक़ब किया गया और हज़ारों ईरानी मौत के घाट उतार दिए गए, मगर रूम के शहनशाह को उनकी कैद से ना छुड़ाया जा सका। दरअसल शाहपुर को एहसास हो गया था कि यह बफरी हुई फ़ौज रूम के शहनशाह को उसकी कैद से निकालने में कामयाब हो सकती है और उसने उसी लिए कैदी शहनशाह को इजलत में कत्ल करा दिया था। अजीना को पुरसी पुलिस के करीब एक मबदे के कहन से शहनशाह रूम के कत्ल की इतला मिली और वो भी सदे रंज ऊंदा मबद में गया और ईरानियों ने देर तक उसकी खाल उतार कर उसमें भूस भर दिया था और उससे एक नुमाया जगह लटका गए। और उसके कत्ल पर अजीना ने अपनी फ़ौज में ज़रा भी जोश नहीं देखा और रूम में नए शहनशाह की ताजपोशी हो गई। नए शहनशाह ने अजीना से वफादारी के तजदीद के लिए अपना एक बाख्तियार सफ़ीर तदम्मर रवाना किया और अजीना ने भरे दरबार में उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया और ऐलान किया कि तदम्मर बदस्तूर रूमी सल्तनत के ज़ैर असर रहेगा। और तदम्मर के तमाम अरकान दौलत ने अपने सरबरा अजीना का फ़ैसला दिल से कबूल कर लिया, लेकिन शहजादा हरमान कीना तोड़ी से बाज ना आया और उसने रूमी सफ़ीर से खुफिया मुलाकात की और उसे अजीना के खिलाफ भड़काया। और हम दरबार रूम के मुअज़्ज़ज़ सफ़ीर की खिदमत में एक अहम इतला लेकर हाज़िर हुए हैं। उसने सफ़ीर को एतमाद में लेकर राजदाराना सरगोशी की। अगर हमारे रिश्ते के चचा मोहतरम अजीना को बेदस्तूर तदम्मर का हाकम रखा गया तो तदम्मर बहुत जल्द खुद मुख्तारी का दावा कर देगा और फिर ये इलाका रूमी सल्तनत के हाथ से निकल जाएगा। सफ़ीर के कान खड़े हो गए और कहने लगा, मैं इस इतला के लिए शहजादे का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस बात का सबूत साफ है जनाबे वाला। हरमान ने कहा कि आपके इल्म में होगा, हालिया जंग में तदम्मुर की सिपाह ने रूम की खातर पेशकदमी नहीं की। उसके पेशे नज़र महज अपने इलाके का दफा था और यही वजह है कि शहनशाह दरीन के बेरहमाना कत्ल के बाद जंग फ़ौरन बंद करा दी गई और ईरानियों से इंतकाम नहीं लिया गया। हरमान शाही तसव्वुर के नगरानी आला ज़ुबान को आला ज़ुबाई को सब्ज़ बाग दिखा के अपने हमनवा बना चुका था और दूसरे दिन उसने रुबाई को चोरे छुपे
رومی سفیر سے ملوا دیا اور رومی سفیر نے زبائی سے تفصیلی بات چیت کی اور مشورہ لیا، اور اگر ازینہ کو معزول کر دیا جائے تو اس کا عہدہ سنبھالنے کے لیے کس کا تقرر ہوا، اور زبائی نے شہزادہ ہرمان کا نام پیش کر دیا اور اس کی انتقامی فطرت کو بے حد سراہا، اور زبائی نے یہ بھی کہا کہ ازینہ کو صرف معزول کرنا کافی نہ ہوگا، حضور اعلیٰ وہ اپنے بڑے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی ضروری ہے کہ انہی کے ساتھ ان کے ولی عہد کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ شہزادہ ہرمان کے لیے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو سکے۔ ولی عہد کے علاوہ ازینہ کے 2 بیٹے اور تھے، لیکن ان کی عمریں ابھی کم تھیں، اور ازینہ اس سازش سے قطعی بے خبر تھا اور اس کے درباری ایرانی سپاہ پر غلبے کی خوشی میں جشن منانے کی تیاریوں میں حصہ لے رہے تھے، اور لونگینوس نے درخواست کی کہ جشن اس کے شہر حمص میں منایا جائے، اور اس کی خدمت کے اعتراف میں ازینہ نے یہ تجویز منظور کر لی۔ جشن کے روز شہر احمق دلہن کی طرح سجایا گیا اور رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام ہوا، اور زنوبیہ، لونگینوس اور زبدہ سمیت دار حکومت کے تمام اکابرین حمص میں موجود تھے، اور جشن کی سب سے بڑی تقریب کے موقع پر تدمر کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، اور ازینہ اپنے ولی عہد کے ساتھ ایک زرنگا تخت پر رونق افروز ہوا، اور محافظ دستے کے سپاہی تخت کے ارد گرد تلواریں سونتے کھڑے تھے، اور اس محافظ دستے کا نگران ہرمان کا آدمی تھا۔ اور جلسے کی کاروائی جب شباب پر پہنچی تو اچانک فضا میں 2 چیخیں بلند ہوئیں، اور شاہی تخت ازینہ اور ولی عہد کے خون سے رنگین ہو گیا۔ سب کچھ آنن فانن ہوا اور کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ ازینہ اور ولی عہد کے ساتھ ہی 2 سپاہی بھی دیکھتے دیکھتے ہلاک کر دیے گئے، اور جن سے ان دونوں کو قتل کرا گیا تھا ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور کوہرام برپا ہو گیا۔ بیٹے اور شوہر کے شفاقانہ قتل پر زنوبیہ دہشت سے بے ہوش ہو گئی، اور لونگینوس اسے سنبھالنے کے لیے لپکا، مگر وہ زمین پر گر چکی تھی۔ منصوبے کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں شاہی قصر کے نگران اعلیٰ نے نئے حکمران کے لیے شہزادہ ہرمان کے نام کا اعلان کر دیا، اور زبائی نے مجمع کو یقین دلایا کہ دربار روم جلد ہی اس اعلان کی توثیق کر دے گا، اور لونگینوس کسی تاخیر کے بغیر جنوبیہ کو وہاں سے لے جا چکا تھا، اور جلسہ گاہ میں نفسا نفسی کی کیفیت تھی۔ سپہ سالار زاہدہ کو یہ غیر متوقع اعلان سخت ناگوار گزرا، اور وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا، اور باہر آ کے اسے معلوم ہوا کہ لونگینوس زنوبیہ کے ساتھ تدمر جانے والے راستے پر گیا ہے، اور زاہدہ بھی انتہائی تیز رفتاری سے اسی طرف روانہ ہو گیا۔ لونگینوس ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا، اور زنوبیہ کی بے ہوشی کے خیال سے اس نے گھوڑے کی رفتار زیادہ نہیں بڑھائی تھی، اور زاہدہ نے انہیں راستے میں ہی جا لیا۔ تدمر پہنچتے ہی سپہ سالار نے مرادی کرا دی کہ مقتول ازینہ کے چھوٹے بیٹے شہزادہ وہب الملعات کو تخت نشین کر دیا گیا ہے، اور شہزادے کے بالغ ہونے تک ملکہ زنوبیہ امور مملکت کی نگران قرار پائی ہیں، اور حمص میں ہونے والی ساری کارروائی منسوخ کر دی گئی، اور زبائی کو اس امر کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ تاج و تخت کے لیے وہ شہزادے ہرمان کے نام کا اعلان کرے۔ ملک بھر میں سپہ سالار کی منادی کا خیر مقدم کیا گیا، اور حمص کے سوا تمام شہروں نے شہزادہ وہب کی حکمرانی تسلیم کر لی۔ البتہ حمص پر ہرمان اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا، اور رومی سلطنت کی جانب سے اس کی تائید بھی ہو گئی تھی۔ غدار زبائی نہایت قلیل فوج کے ساتھ حمص میں تنہا رہ گیا، اور ہرمان کے فرار سے اس کی ہمت بھی جواب دے گئی، اور جلد ہی وہ بھی ایک رات کو روم بھاگ گیا، اور زہدہ جب حمص پہنچا تو کسی مزاحمت کے بغیر حمص اس کے حوالے کر دیا گیا۔ مقتول ازینہ کے محافظ دستے کا سالار اب تک مقصمت ہی میں تھا، اور وہ فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا، اور اس نے سازش کی تمام تفصیلات بیان کر دیں اور زہدہ سے جان کی امان طلب کی، مگر زہدہ نے اسے معاف نہیں کیا، اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اب تدمر پر زنوبیہ بلے شرکت غیرے کی حکمران تھی، مگر اس کی حکومت کو روی شہنشاہ نے تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ ایک روز روم سے ایک ایلچی شہنشاہ روم کا حکم نامہ لے کر زنوبیہ کے دربار میں آیا۔ ملکہ زنوبیہ کو فی الفور تخت سے دست برادر ہونے کا حکم دیا گیا، اور نئے بادشاہ اوریلیا نے لکھا تھا کہ ہم تمہیں حکومت کا اہل تصور نہیں کرتے، بلکہ شہزادہ ہرمان کو تدمر کا عمل مانتے ہیں، اور تم پر لازم ہے کہ اطاعت کرو اور حکومت اس کے حوالے کر دو، اور اگر حکم سے گریز کیا جا گیا تو تمہیں باغی سمجھا جائے گا، اور ہمیں فوراً اپنی رضامندی سے آگاہ کرو تاکہ شہزادہ ہرمان کو تدمر روانہ کیا جا سکے۔ اور زنوبیہ نے لونگینوس سے مشورہ کیا کہ کیا جواب دیا جائے۔
लोंगिनोस ने कहा कि तदम्मुर अब अमलन रवी सल्तनत के ज़र नगी नहीं रहा और ये एक बाख्तियार हुकूमत है, और जिस तरह अरबों पर ईरानियों की बर्तरी तस्लीम नहीं की गई, इसी तरह रूमियों की बर्तरी भी हमें तस्लीम नहीं। और सिपा सालार ज़ोहदा भी मौजूद था और वह बोला, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें रूमियों से बरसरे पेकार होना पड़ेगा और रूमी आसानी से ये इलाका नहीं छोड़ेंगे। जंग तो नागुज़ेर है, लोंगिनोस ने कहा, और बेहतर ये होगा कि हम हमले में पहल करें, और नीज़ तदम्मुर के अलावा शाम पर भी हमारा ही हक है, और सारा अरब हमारा है, और सारे अरब एक हैं। हम उन इलाकों से पहल करेंगे और हर अरब हमारा साथ देगा। जनूबी और ज़हादा ने लोंगिनोस से इत्तफाक किया और उसी रोज़ एक बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी गई, और रूम के एलची को ये दो टोक जवाब लिख कर दे दिया गया कि अरब एक अलग कौम है और वो किसी का गलबा तस्लीम करने पर आमादा नहीं, और तदम्मुर एक आज़ाद इलाका है और उस पर रूमियों का दावा नाजायज़ है, और रूमी शहनशाह आइंदा कोई फरमान भेजने की जहमत ना करें, और हम उनके नामाज़ किए हुए भगोड़े हुरमान को हुक्मरान नहीं मानते, और हमारा मुतालबा है कि रूम हमसे बराबरी के तल्लुकात कायम करे और तदम्मर के भगोड़े को तदम्मर के हवाले कर दे, और उसी सूरत में हम ये समझेंगे कि रूम हमसे दोस्ती करने पर रज़ामंद है, वरना नहीं। और रूम की जवाबी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए लोंगिनोस ने नौजवानों का गिरोह तरतीब दिया, और उस गिरोह के हर फर्द को मलका जनूबिया का खुफिया पैगाम लेकर पूरे अरब में फैल जाना था। उस ज़माने में शाम के अलावा मिस्र पर भी रूम ही की हुकूमत थी, और दोनों मुल्कों में रूमी सपाह रहती थी, मगर उसकी ज़्यादा तादाद नहीं थी और उनसे निमटना ऐसा मुश्किल नहीं था। एक रात लोंगिनोस ने जनूबिया से कहा कि जनूबिया, मुझे कुछ दिन के लिए तुमसे जुदा होना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि खुद शाम जाकर अरब सरदारों को तुम्हारे हक़ में हमवार करूँ। और लोंगिनोस जनूबी अफसरदगी से बोली, और तुम ही मेरे शमशीर हो और तुम ही मेरे सुपर, और तुम्हारे बगैर मैं गैर मसला हो जाऊंगी। मुझसे तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त हो सकती है, और तुम तो मुझे हुकूमत और इक़्तिदार से ज़्यादा असीज़ हो, और क्या तुम्हारे तरबियत याफ्ता नौजवानों में से कोई ऐसा नहीं जो शामी सरदारों से बात कर सके, और मैं खुद जाना चाहता हूँ। खुद जाने की बात और है, बेहतर है जाओ। जनूबिया मान गई, और तुम कहीं भी चले जाओ, हर वक्त मेरी निगाह में रखोगे, अब हमें फासले दूर नहीं कर सकते। और लोंगिनोस तदम्मुर से दमिश्क रवाना हो गया। उसने अपने हुलिये में तब्दीली कर ली, और किसी के लिए उसे पहचानना आसान नहीं था। उसके पास शामी सरदारों के नाम मलका जनूबिया का एक पैगाम था, और दमिश्क पहुंचकर लोंगिनोस ने एक सराय में क़याम किया और चंद रोज़ तक वहाँ के हालात का मुशाहदा करता रहा। वहाँ एक आम बेचैनी पाई जाती थी, क्योंकि शाम से रवी फौज का सलूक अच्छा नहीं था। और लोंगिनोस एक दिन दमिश्क के बाज़ार से गुजर रहा था कि बाज़ार में भगदड़ मच गई, और मालूम हुआ कि यहाँ से किसी ज़ोवी सरदार की सवारी गुजरने वाली है। और लोंगिनोस को एक राहगीर से पूछा, अरे भाई, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? और राहगीर ने उसे हैरत से देखा और बोला, क्या तुम कहीं और से आए हो? हाँ, मैं मिस्री अरबी हूँ। राहगीर ने ठंडा सांस लेकर बोला, रवी सरदार जिस शामी नौजवान को चाहते हैं गुलाम बना लेते हैं, और जो शामी दोशीदा नज़र आ जाए, यानी उन्हें पसंद आ जाए, उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। और ख़ुद मेरी बहन उठाई जा चुकी है, और अब कोई बाइज़्ज़त लड़की अपने घर से नहीं निकलती। लोंगिनोस ने अजहार हमदर्दी करते हुए कहा, ये तो अरबों की गैरत पर एक ताज़ियाना है, और पहले तो हम ऐसे नहीं थे। सच कहा तुमने, अब यहाँ बेगैरती रहते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और उसी वक्त लोंगिनोस ने एक रूमी सरदार को देखा जो 4 घोड़ों वाले रथ में सवार था, और उसकी गर्दन तनी हुई थी, और उसके पहलू में एक दोशीदा सहमी हुई बैठी थी, और हर तरफ सन्नाटा छा गया। शाम के हालात पर लोंगिनोस का दिल तड़प उठा, और उसने सोचा कि इस इलाके को इन मसाइब से कैसे निजात दिलाना इंसानी फ़र्ज है। और उसके फरस्तादा मकबरों में से एक दमिश्क के किले में एक अरब सरदार के खादमों में शामिल हो गया था, और लोंगिनोस ने उसके ज़रिए अरब सरदार को एक खुफिया पैगाम भेजा कि तदम्मुर की मलका जनूबिया का सफ़ीर मुलाकात का मुतमनी है। और सरदार बहुत हैरान हुआ कि आखिर उसकी ख्वाबगाह में यह खुफिया पैगाम कैसे पहुंचा, और उसने अपने खादमों से पूछ-गुछ की, मगर कोई नतीजा ना निकला। बहरहाल कुछ सोच कर उसने मुलाकात का इरादा कर लिया, और मुकर्रर वक़्त पर किले की मशरक़ी दीवार के बाहर पहुंच गया।
आधी रात हो चुकी थी और लूंगीनोस किसी तरफ से निकल कर उसके सामने आ गया और वह जैसे ही सरदार के करीब पहुंचा, सरदार ने जोर से ताली बजाई और ताली बजते ही छुपे हुए मसला अफराद सामने आ गए और उन्होंने लूंगीनोस को हिरासत में ले लिया। उस पर लूंगीनोस को बड़ी हैरत हुई कि सरदार के हुक्म पर उसकी तलाशी ली गई और उसके पास से मलका ज़नूबिया का पैगाम बरामद हुआ और पैगाम पर मलका की मोहर थी और मोहर देखकर सरदार मुतमिन हो गया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें इज्जत के साथ किले में ले चलो। पैगाम में सरदार को वतन की आज़ादी के लिए काम करने की तरगीब दी गई थी और उसे शिद्दत से यह एहसास दिलाया गया कि वह अरब है और सरदार पर पैगाम का खातर ख्वा असर हुआ और लूंगीनोस की तवक्का के मुताबिक वो हर कुर्बानी देने को तैयार हो गया। सरदार ने लूंगीनोस का हाथ अपने सीने पर रख लिया और कहा, यह मेरे लिए निहायत फ़ख्र का मकाम है कि मुल्क का एक मशहूर दानिशमंद, एक जरी रहनुमा मलका आलिया का पैगाम लेकर मेरे पास आया है और वो एक बाअसरो बारसोख सरदार था। उसने मलका ज़नूबिया के हाथ मजबूत करने के लिए बहुत काम किया और दूसरे बहुत से बरादरों का तावन भी हासिल कर लिया। राहें हमवार होती गईं और सिर्फ चंद ज़मीर फरोशों ने रूमी आकाओं के साथ हक़ नमक की और दायगी का मुजाहरा किया, लेकिन ज़्यादातर लोग कौम वतन के वफादार साबित हुए और मलका ज़नूबिया के हजूर लूंगीनोस तरकरू लौटा और वह चंद रोज़ के लिए तदम्मुर आया था, मगर ज़नूबिया ने उसे बहुत दिनों तक रोके रखा। और एक शाम का जिक्र है कि वो दोनों महल के बाग में एक गुलपोश रवश पर टहल रहे थे और ज़नूबिया का हाथ लूंगीनोस के हाथ में था और चलते चलते ज़नूबिया ठहर गई और बोली। लूंगीनोस उसकी आवाज़ में बेताबी थी, चलो बगल देवता के माबद में चलो, वहाँ हमें कोई फैसला कर लें और अब ये जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती, अभी इसका वक़्त नहीं आया। लूंगीनोस ने मोहब्बत से उसे समझाया, अभी हमारा ये अक़दाम मसलत के ख़िलाफ़ होगा और मैं माँ की तरफ से ज़रूर अरब हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मेरा बाप एक यूनानी था और तदम्मर के बाशिंदे मौजूदा फ़िदा में ये पसंद नहीं करेंगे कि उनकी मलका का नाम एक नीम अरब शख्स के साथ लिया जाए। ये तुम क्या कह रहे हो लूंगीनोस? ज़नूबिया ने उसके शाने पर सर रख दिया और शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तदम्मर वाले तुम पर कितना फ़ख्र करते हैं। मुझे अंदाज़ा है मेरी मलका, लूंगीनोस ने उसका बाजू थपथपाया, मगर तुम ये क्यों भूल रही हो कि मुल्क में हमारे मुखालफीन और हासदों की कमी नहीं और वो मौके की ताक में हैं और हम उन्हें ज़रा सा भी मौका क्यों दें। और इस ख़ारज़ार में सरूसत हमें संभल कर कदम रखना है और हमारी मामूली सी बेएहतियाती भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हवा का रुख बदलते क्या देर लगती है और वैसे भी किसी रस्मी इक़दाम की ज़रूरत ही क्या है कि हम एक दूसरे से अलग हैं। और ये सुनकर ज़नूबिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और चंद रोज़ बाद लूंगीनोस ने तमाम हालात ज़नूबिया और सिपा सलार ज़ाहदा के गोश गुजार किए और ज़ुब्दा जंग की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था और तीनों की बाहमी सलाह से जल्द ही कूच का बगल बजा दिया गया। उनका पहला हदफ शाम था और फौजों के झुरमट में मलका ज़नूबिया भी लूंगी के साथ मौजूद थी और शाम की तरफ नहायत तेजी के साथ पेशकदमी की गई ताकि रूमी फौजें मज़ाहमत के लिए बर वक़्त ना पहुंच सकें। और एतमाद वाले शामी सरदारों को मतला किया जा चुका था कि तदम्मर के लश्कर की आमद है और आखिर तदम्मर की फौजें शाम में दाखिल हो गईं। शहरियों को एहसास तक न हुआ कि क्या होने वाला है और हमले की बू सूंघते ही रूमी सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए और अपने गुलाम मुल्क शाम में उनके मजे थे और आसाइशों ने उन्हें ताइश परस्त बना दिया था और उनकी मुस्तदी रहन रख ली थी और वो तदम्मुर के पुरअज़म और तादादम सपा के सामने ना टिक सके और उनके मुखबिरों ने रूम जाना चाहा, मगर उड़ने से पहले उनके पर काट दिए गए और सर काट दिए गए। और वो मादूदे चंद शामी ज़मा जो अब तक रूम से मिले हुए थे, उन्होंने भी पिसपाई इख्तियार कर ली और सहरा रूमी नौफौजों के खून से सैराब हो गया। आखिर में रूमी अफसरों के हरम की तलाशी ली गई और हरम से ज़्यादातर अरब औरतें बरामद हुईं और रूमी औरतें बहुत कम थीं और रूमियों से गुलू खलासी होने पर दमिश्क में यौम निजात मनाया गया और 2 शहरों अंताकिया और सलूकिया में रूमी बाशिंदों की कसरत थी और उन पर कड़ी नज़र रखी गई। अब वो हाकिम नहीं महकूम थे और आका नहीं गुलाम थे। लूंगीनोस के मशवरे पर मलका ज़नूबिया ने अपनी अफवाज को हुक्म जारी किया कि अब रूमी बाशिंदे हमारा हिफाजत में हैं और हम उनकी सलामती के जिम्मेदार हैं। उन पर कोई ज्यादती ना की जाए और नीज़ वो अरबों के इंतकाम का निशाना ना बनने पाए। और लूंगीनोस जानता था कि अगर ये हुक्म जारी ना हुआ होता तो अंताकिया और सलूकिया में खून की नदियां बह जाती।
शाम की फतह पर तदमरी फौज का हौसला बहुत बुलंद हो गया और शामी बाशिंदे बड़े पैमाने पर तदमरी फौज में भर्ती किए गए और अफवाज की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। और ज़ुब्दा ने खुशखबरी लोंगिनूस को सुनाई और लोंगिनूस बोला, अब हम मिस्र में भी फतह कर सकते हैं। उठो ज़ुब्दा, और सिकंदरिया हमारा मुंतज़िर है। मिस्र पर लश्कर के लिए 70,000 बेहतरीन सिपाही चुने गए और उनमें सहराइयों के अलावा शामी अरब भी शामिल थे। और मलका जनूबिया के जिलों में ये फौज आंधी और तूफान की तरह मिस्र पहुंच गई और जहां गई वहां फतह नुसरत के चिराग जल उठे और बड़े बड़े जंग जो मिस्रियों ने मलका जनूबिया में से मफाहमत का ली और गासब रूबियों को अस्कंदरिया से भी निकाल दिया गया और नए सिक्के ढाले गए। उन पर शहनशाह रूम और रेलिया की तस्वीरें नहीं थी और मलका जनूबिया के बेटे हिब्बो हलाल को अगस्टस और जनूबिया को अगिस्टा कहा जाने लगा। और रफ्ता रफ्ता शमाली अरब और मिस्र के बाद एशिया को चुक कर एक हिस्सा भी मलका जनूबिया के ज़ेर नगीन आ गया और एशियाई कोचक में अनकरा तक जा बजा चौकियां कायम कर दी गईं और तदमरी हमलों की शिद्दत कैलेडून तक महसूस की गई। और इस तरह सहरा के मलका जनूबिया ने रूमी सल्तनत में अपने लिए एक नई अजीम शान सल्तनत पैदा कर ली। तदमरी लोग मलका जनूबिया को बिनते ज़बाई यानी बिनते अतिया कहने लगे और शामी और मिस्री अरबों ने उसे अल-ज़बा का नाम दिया। और सिपा सलार ज़ब्दा ने मुल्क से एशियाई कोचक में मजीद पेशकदमी की इजाज़त मांगी और मलका ने लोंगिनोस से मशवरा तलब किया और लोंगिनोस ने कहा, मजीद पेशकदमी मुनासिब नहीं, लेकिन ज़ुब्दा नहायत जोश में है और फतेह पर फतेह हासिल कर रहा है और उसे रोका गया तो वह दिल बर्दाश्ता हो सकता है। लोंगिनोस खामोश हो गया और फिर चंद लम्हों के बाद उसने कहा, रूमी शहनशाह और रेलिया अपना बिगड़ा हुआ निज़ाम दुरुस्त कर चुका है और अब वो यकीनन एशियाई कोचक पर तवज्जो देगा और पूरी कुव्वत के साथ निबर्दे आजमा होगा। और लोंगिनोस की पेश गोई दुरुस्त निकली। रूम ने एशियाई कोचक के इस इलाके पर हमला कर दिया जिससे तदम्मर फतेह कर चुका था और हमला बहुत जोरदार और अचानक था और ज़ुब्दा की फौजें बिखरी हुई थीं। उनकी यकजाई से पहले ही रूमी लश्कर ने जंग का फैसला कर दिया और ज़ुब्दा के लिए कमक ले जाने वालों में मलका जनूबी और लोंगिनोस भी शामिल थे। और वह जिस वक्त महाद पर पहुंचे उनकी फौजें बड़ी बेसरो सामानी में भाग रही थीं और उन्हें भी लौटना पड़ा। अब रूमी लश्कर शाम की तरह बढ़ा और अंताकिया और सलूकिया रूमियों के शहर थे और सो लश्कर की आमद पर शहरियों ने खानी जंगा शुरू कर दी और मौका से पूरा फायदा उठाया। रूमियों को बराए नामज़ाहमत का साबका पड़ा और तदमरी सपा भारी सामान से लैस थी और रूमियों के सुबक रफ्तार रिसालों और प्यादा फौज ने उसे मात दे दी और मलका जनूबी और ज़ुब्दा पीछे हटते हटते तदमर पहुंच गए और अब तदमरी दारुल हुकूमत का सहराई रास्ता हमला आवर दुश्मन के लिए खुला था। चंद रोज बाद खबर मिली कि शहनशाह रूम तदमर की तरफ बढ़ रहा है और मलका जनूबिया को कमजोर पाकर मिस्री सालारियों ने रूमियों से साजबाज कर ली और उनसे भी रूमियों को फौजी अमदाद मिल गई। और लोंगिनोस ने इस मौका पर रूम के दुश्मन ईरान को दोस्त बनाना चाहा और ईरान से फौजी अमदाद हासिल करने के लिए एक एलची भेजा गया, मगर ईरान ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो खामोश तमाशाई बना रहा और उसे वो दिन याद था जब मलका जनूबिया के शोहर अजीना ने रूम की हमायत में ईरान से जंग की थी और वो गोया खामोशी से अपने दुश्मनों की तबाही का तमाशा देखना चाहता था। शहर तदम्मर रूमी लश्कर के मुहासरे में था और लोंगिनोस ने मलका जनूबिया को सुलह का मशवरा दिया, मगर ज़ाहदा ने पुरजोर अल्फाज में सुलह की मुखालफत की और उसने लोंगिनोस से कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमें ज़लीलो रुसवा होकर जिंदा रहने का मशवरा दे सकते हैं और आपने गौर नहीं किया कि हम इस तरह एक बार फिर रूमियों के गुलाम बन जाएंगे। लोंगिनोस ने तहम्मुल से वजाहत की, ज़ाहदा मेरे भाई, इस वक्त जोश की नहीं होश की ज़रूरत है और हुकूमत बिल्कुल खो देने से कहीं बेहतर है कि हम वक्ती तौर पर उनकी बर्तरी तस्लीम कर लें और मसलहत इसी में है, वरना मेरे मुंह में खाक, हमें बहुत बुरा वक्त देखना पड़ेगा और हमने अगर सुलह में पहल की तो मुमकिन है रूमी शहनशाह इस इलाके पर मलका जनूबिया को अपना नाइब मान ले। और ज़ब्दा अपनी बात पर अड़ा रहा और जनूबिया भी खामोश रही। शायद उससे भी ज़ब्दा से इत्तफाक था और लोंगिनोस ने होंठ सी लिए और खिलाफ तवक्का खुद रूम की तरफ से चंद शराइत के साथ सुलह की पेशकश कर दी गई और रूम ने पूरे तदम्मर को 2 हिस्सों में बांटने की तजवीज़ पेश की।
एक हिस्से पर हरमान की हुक्मरानी होगी और दूसरे पर ज़नूबिया की, और साथ ही रूम ने शहर हवाले करने का मुतालबा किया था, और ये शरायत रूम की कमज़ोरी पर महलूल की गई। और ज़नूबिया का बेटा वहब 18-19 वर्ष का हो चुका था, और वो एक पुरजोश नौजवान था और अपने बाप की तरह बहादुर। उसने कभी लोंगिनोस के मुतल्लक जुबान नहीं खोली थी, मगर दिल से उसे नापसंद करता था। और एक जोर वाहब ने मलका ज़नूबिया के सामने बरसरे दरबार बुलंद आवाज़ में कहा, हम अपने दिलावर बाप अजीना के फर्जंद हैं और बालग हो चुके हैं, और हमें जंग की इजाज़त दे दी जाए, और हम अपने बाप की तरह मैदान में बहादुरी के जोहर दिखाने के मुंतज़िर हैं। और दरबार में दाद सताइश का गलगा बुलंद हुआ, और सब ने यक ज़बान होकर वहब की तायद की, मगर लोंगिनोस ने उस बाबत कहा, तदम्मर के जियालो, यकीन करो हमारे लिए ये एक सुनहरी मौका है। रूम खुद सुलह का हाथ बढ़ा रहा है, और मलका आलिया भी मेरी बात से इत्तफाक फरमाएंगी, और हमें रूम की पेशकश किसी लय तो लाल और किसी हीलो हिज्जत के बगैर कबूल कर लेनी चाहिए, और नौश्ता दीवार यही है। वाहब ने सवाल किया, क्या मोहतरम लोंगिनोस ये चाहते हैं कि तदम्मर दो टुकड़े हो जाए? जनाबे वाला, इस शहर के सिवा अब हमारा कब्जा किस शहर पर है? और लोंगिनोस ने बरजस्ता कहा, वक़्त आया तो हम पहले की तरह फिर खुद को मजबूत कर लेंगे और रोम की गुलामी का तोक उतार देंगे। जो खुद अपने हाथ से तोक पहन ले वो फिर कभी आज़ाद नहीं होता। और ज़ुबदा बोल उठा, और मुझे आली मकाम शहजादे की तजवीज़ से पूरा इत्तफाक है, और हमें शहर से निकल कर दुश्मनों पर भरपूर हमला करना चाहिए। शहनशाह रूम की शरायत ठुकरा दी गई, और वाहब और ज़ुबदा फौजें लेकर निकले, और घमसान कारण पड़ा। शाही कसर का साबक सालार ज़ुबाई नौजवान वाहब के हाथों मारा गया, और वाहब बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था, और उसने तय कर लिया था कि गद्दारों को अपने हाथों से ठिकाने लगाऊंगा। और उसकी पूरी तवज्जो हरमान और ज़ुबाई की तरफ थी, और ज़ुबाई मरा तो उसका हौसला बढ़ गया, और उसने हरमान की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। अब वाहब के साथ गिनती के चंद सरफरोश रह गए थे, और वह लड़ते लड़ते दुश्मनों की सफ़ों में घुस गया। ज़ुबदा दूसरी तरफ शहनशाह रूम का मद्दे मुकाबल था, मगर उसे जब खबर मिली कि वाहब के साथ सिर्फ चंद सिपाही हैं तो वह फिक्रमंद हो गया, और महाज से हटना उसके लिए मुश्किल था। लड़ाई का नक्शा बदल जाता, और फिर भी ज़ुबदा ने यही फैसला किया कि उसे शहजादे को कमत पहुंचानी चाहिए, और ज़ुबदा अपने मकाम से हटकर शहजादे की जान बढ़ा। और शहनशाह रूम ने मौका से पूरा फ़ायदा उठाया, और उसने अकब से तदमरी फ़ौजों की वापसी का दरवाज़ा बंद कर दिया, और तदमरी फ़ौजें दोनों तरफ से रूमियों में घिर गईं। हरमान दानिस्ता वहब को अपने पीछे लगाकर बहुत अंदर तक ले गया, और वहब को उस वक़्त अपनी गलती का एहसास हुआ जब वक़्त गुजर चुका था। उसने खुद को दुश्मनों के नरगे में देखा, मगर फरार होने के बजाय लड़ते हुए मर जाने को तरजीह दी। उसने बढ़कर हमला किया, और उसके सिपाहियों को दम जोन में दुश्मन ने काट डाला। उनकी तादाद ही कितनी थी, और वहब का जिस्म जख्मों से चूर था, मगर अभी तलवार उसके हाथ में थी। जब उसका घोड़ा बहुत जख्मी हो गया तो वह नीचे कूद गया। और फिर किस्सा गो शहजादा मारा गया होगा, आरज किस्से के दरमियान में बोल उठा, और किस्सा गो अचानक यूं चौंक उठा जैसे ख्यालो ख्वाब की दुनिया से वापस आने में उसे देर लग रही हो। और मैंने आरज को मुखातब किया, ए तबीब, किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। और किस्सा गो अपने हवास में लौट आया था और कहने लगा, किस्सा ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन क्या? मैंने सवाल किया। मलका ज़नूबिया का किस्सा अब ख़त्म होने वाला है, मगर मैं बहुत थक गया हूँ, इजाज़त हो तो आइंदा जुमे को। और ठीक है। और मैंने किस्सा गो की बात काट दी और उठकर खड़ी हो गई। वहाब ने अपने मद्दे मुकाबल को भी घोड़े से गिरा लिया, और घोड़ा जोर से हिनहिनाया, और सवार नीचे आ रहा, और सवार के साथ घोड़ा भी गिरा था। गिरने के बाद घोड़ा उठने की कोशिश में था कि वहाब उछलकर उस पर सवार हो गया, और उसकी तलवार दुश्मन के खून में डूबी हुई थी, और वो देर तक दुश्मनों से अकेला ही लड़ता रहा। और ज़ुबदा अब तक दुश्मनों का हिसार तोड़कर उस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका था, और खुद वो उसके साथी चारों तरफ से घेर लिए गए। और हरमान अब तक वहाब से दूर दूर था, और वहाब ने एक रूमी सिपाही के सीने में तलवार उतारते हुए हरमान को देखा, और लम्हा भर को इधर मतवज्जा हो गया, और रूमी सिपाहियों को मौका मिल गया। उन्होंने वहां पर हमला करते हुए जोर का नारा लगाया, और दूसरे ही लम्हे बीक वक़्त कई तलवारें वहाब के जिस्म में प्यूसत हो गईं।
वो मुंह के बल घोड़े से गिरा और उसका जिस्म रूमी सिपाहियों के घोड़ों ने रौंद डाला और जुब्दा ने लड़ते लड़ते दुश्मन पर पुरजोश नारे सुने और फिर वहाब के कत्ल की खबर एकदम हर तरफ फैल गई और तदमरी सिपाही मायूस होकर भागने लगे और एक सिपाही निहायत जख्मी हालत में बहुत मुश्किल से जान बचाकर मलका जनूबिया तक पहुंचने में कामयाब हो गया और जनूबिया पर यह खबर बिजली की तरह गिरी और जख्मी सिपाही ने बताया कि जुब्दा भी दुश्मनों के घेरे में है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं और जनूबिया अपने होशो हवास बरकरार न रख सकी मगर लूंगीनूस उसे संभाले रहा। उसी रोज आधी रात के करीब लूंगीनूस ने गमददा मलका को एक सानी पर सवार किया और तन तनहा उसे महल से निकाल ले गया। बदकिस्मती से दुश्मन को बर वक्त सुनगुन मिल गई और रूमी सवारों का एक मशल बरादर दस्ता तो आंखों में दौड़ा और मलका जनूबी और लूंगीनूस दराए फर्रात अबूर करने के पहले गिरफ्तार कर लिए गए और रूम जंग जीत चुका था और जनूबी और लूंगीनूस जिंदा में पहुंच गए और बाहर की दुनिया से उनका तल्लुक बिल्कुल टूट गया और वो दोनों शिकस्त पर निहायत शर्मसार और मलौल थे, लेकिन उन्हें खुशी थी कि दोनों साथ हैं। एक रोज जनूबिया ने लूंगीनूस से कहा कि ताज्जुब है कि हम और तुम अब तक जिंदा कैसे हैं, मगर शायद हमें ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहने दिया जाए। तुम्हें कोई खतरा नहीं, लूंगीनूस मजमल आवाज में बोला। हरमान तुम्हें शहनशाह रूम से मांग लेगा और जनूबिया का चेहरा दहक उठा और कहने लगी, अगर ऐसा हुआ तो यकीन करो वो हमें हाथ लगाने से पहले ही मौत की नींद सो जाएगा। और लूंगीनूस की बात सही साबित होने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक दिन मलका जनूबी और लूंगीनूस को जिंदा से निकाला गया और दोनों के पैरों में जंजीरें पड़ी थी। उन्हें तदम्मर के नए हाकम हरमान के दरबार में ले जाया गया और जिस मजान पर कभी जनूबिया बैठती थी आज उस पर हरमान बैठा था। एक सिपाही ने आगे बढ़कर उन दोनों के सर जबरदस्ती हरमान के सामने झुका दिए और लूंगीनूस ने गर्दन उठाकर कहर आलूद नजरों से हरमान को देखा और फिर बुलंद आवाज में बोला, बदबख्त गुस्ताख, क्या तू भूल गया कि मैं तेरा उस्ताद हूं और ये खातून तदम्मर की मलका जनूबिया हैं जो तेरे लिए हमेशा काबिल ताजीम रही। और सो हमें जंजीरों में जकड़े देखकर तुझे शर्म नहीं आई और हमने तुम दोनों की जिंदगी बचाई है। आली मरतब शहनशाह और रूम तुम दोनों को कत्ल कर देना चाहते थे, सिर्फ हमारी गुजारिश पर उन्होंने तुम्हारी जान बख्शी की। और हरमान ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर बोला, लूंगीनूस मेरा उस्ताद, तुम्हें यूनान वापस जाने की इजाजत है और जहां तक मलका आलिया का ताल्लुक है तो ये बदस्तूर मलका आलिया रहेंगी। और जनूबिया को मुठ्ठियां भींच दी गईं और हरमान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों के जंजीरें काट दी जाएं। जनूबी और लूंगीनूस की जंजीरें काट दी गईं और जंजीरें कटते ही जनूबिया तेजी के साथ एक सिपाही की पेटी से खंजर खींच लिया और बफरी हुई शेरनी की तरह हरमान पर झपटी। और इससे पहले कि हरमान के मुहाफिज तलवारें निकाले, जनूबिया ने हरमान को तख्त से घसीट लिया और पे दर पे वार करने लगी और हरमान ने देखते ही देखते दम तोड़ दिया। तदमरी दरबारियों ने नारा बुलंद किया और बिनते ज़बाई जिंदाबाद। और दरबार में जो रूमी सरदार मौजूद थे उन्होंने तलवारें उठाईं, मगर उनकी तादाद कम थी और तदम्मर के लोगों ने उन्हें लम्हों में ठिकाने लगा दिया और दरबार में खून ही खून फैल गया। मुकाबला सख्त था, एक ताज के लिए कई सर कलम हो चुके थे और थोड़ी ही देर बाद दोबारा मलका जनूबिया की हुक्मरानी का ऐलान कर दिया गया। मगर लूंगीनूस मुतमिन नहीं था। उसने तखलिया होते ही जनूबिया से कहा कि जिन सरदारों की मदद से तख्त दोबारा मिला है वो बिनतल वक़्त हैं और सख्त मतलबी हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम यहाँ बदस्तूर खतरे में हैं और हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। नहीं लूंगीनूस, उनमें से बेशतर अफराद हमारे वफादार हैं और हरमान का फितना खत्म हो चुका है और अब कोई तदम्मर का दावेदार नहीं और शहनशाह रूम भी वापस जा चुका है और अगलब है कि अब यह नहीं आएगा और अगर आ गया तो हम उससे लड़ेंगे, जनूबिया पुरअज़म आवाज में बोली। और लूंगीनूस ने उसे ऊंच नीच से आगाह किया मगर वह टस से मिस ना हुई और उसकी हिम्मत देख कर लूंगीनूस खामोश हो गया। शहनशाह रूम और एलिया अभी सहेली पार्ट नहीं पहुंचा था कि उसे खबर मिली तदम्मर में बसात उलट गई है और लूंगीनूस की शख्सियत और सरगर्मियों के बारे में भी उसे तफसील से बताया गया और वो पहले भी लूंगीनूस का नाम सुन चुका था। उस दोगले अरब को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और एलिया गुस्से से बोला और फिर अपनी फौजों को हुक्म दिया पलट कर तदम्मर पर हमला कर दिया जाए। तदमरी अफवाज को संभलने का मौका न मिल सका और वह बहुत बहादुरी से लड़ी मगर शिकस्त खा गई और लूंगीनूस एक बार फिर जनूबिया को लेकर फरार हो गया और तीलियां तलमलाकर रह गया। तदम्मर की ईंट से ईंट बजा दी गई और ऐसी तबाही पहले कभी तदम्मर पर नहीं आई थी।
لونگی نوس اپنے شہر حمص پہنچ چکا تھا اور جنوبیہ اس کے ساتھ تھی۔ حمص والوں نے لونگی نوس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں تدمر کے قتل کی عام کی خبریں مل چکی تھی اور وہ بے حد ڈرے ہوئے تھے، اور ایلیا کو لونگی نوس اور جنوبیہ کی گرفتاری میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ لونگی نوس کو بھاری زنجیروں میں شہنشاہ روم کے حضور پیش کیا گیا اور شہنشاہ اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، اور بد نصیب تو ایک عالم فاضل انسان ہے، لیکن افسوس کہ تو نوشتہ دیوار نہ پڑھ سکا، اور بادشاہ سلامت بھی اپنے نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سکے ہیں۔ لونگی نوس نے سکون سے کہا، اور روم زیادہ عرصے عربوں کو غلام نہیں رکھ سکتا، اور یہ قوم اب جاگ اٹھی ہے۔ اور ایلیا بگڑ کر بولا، مگر تو عرب کب ہے؟ اور میری ماں شامی تھی، لہٰذا میں عرب ہوں، اور اپنے عرب ہونے پر مجھے فخر ہے۔ اور ایلیا نے تیش میں حکم دیا کہ تدمر کی باغی عورت کو لایا جائے اور اس کے سامنے اس بد زبان کو قتل کر دیا جائے۔ جنوبیہ کو لایا گیا اور اس کا چاند اب تک ماند نہیں پڑا تھا، اور شہنشاہ روم نے جنوبیہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ جنوبیہ پایا زنجیر تھی اور اس کا حال خراب تھا، اور پھر بھی وہ ایک ملکہ معلوم ہو رہی تھی۔ اور ایلی اب سمجھا کہ جنوبیہ کس خوبی نے عربوں میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، اور جنوبیہ کو دیکھ کر لونگی نے اس کے چہرے پر شادابی آ گئی، اور جب تک اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دی گئی اس کی نظریں جنوبیہ کی طرف اٹھی رہیں، اور ادھر لونگی نے اس کا سر کٹ کر گرا اور ادھر جنوبیہ گچھ کھا کر گر پڑی۔ جنوبیہ کو ہوش آیا تو شہنشاہ روم اسے اپنے ہمراہ روم لے جا رہا تھا، اور بے ہوشی ہی میں اسے زیورات اور جواہر پہنا دیے گئے، اور شہنشاہ جلوس میں جنوبیہ کی سواری سب سے نمایاں تھی۔ اسے ایک رتھ میں بٹھایا گیا اور رتھ کے چاروں طرف مسلح رومی سوار تھے، اور شہنشاہ اسی شان سے رومی کے دارالحکومت میں داخل ہوا۔ اور ایلیا نے جنوبیہ کی جان بخش دی، اور تو ولی کے مقام پر اسے ایک عالی شان قصر سکونت کے لیے دے دیا، اور قصر میں جنوبیہ کے واسطے زندگی کی تمام آسائشیں فراہم کی گئیں، مگر اس نے موقع ملتے ہی زہر کھا لیا، اور یہ زہر ایک انگوٹھی میں تھا جو تدمر کی نامور ملکہ جنوبیہ کی انگلی میں ہمیشہ جگمگاتی رہتی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قصہ گو نے سمام بات دیا تھا، اور تدمر کی جنوبیہ کا چہرہ مہرا یوں میری آنکھوں میں گم گیا جیسے میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اسے بہرحال قصہ گو کا کمال ہی کہا جاتا ہے، اور اس نے اپنے ہنر سے ایک مردہ زمانے کو زندہ کر دیا تھا۔ سو میں نے اس کی تعریف میں کہا کہ تو نے ہمیں خوش کر دیا، سو اب ہم پر بھی لازم ہے کہ تجھے خوش کر دیں۔ اور قصہ گو میرا اشارہ سمجھ گیا اور بولا، مگر سرائی کے مالک، اور میں نے اس کی بات کاٹ دی، فکر نہ کر، تجھ سے جواب طلبی نہیں ہوگی، ہم اپنی مرضی سے تجھے انعام دینا چاہتے ہیں۔ اور دینار میرا نام بھی تھا، اور اس قیمتی سکے کا نام بھی جو ساری مملکت میں چلتا تھا۔ دینار سرخ سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، اور میرے ماں باپ نے مجھے بہت قیمتی جان کر ہی شاید میرا نام دینار رکھا تھا۔ قصہ گو کہ میں نے 10 دینار سرخ دیے تو اس نے اٹھ کر فرشی سلام کیا، اور اس عرصے میں آرج کے ساتھ میں اس مکان سے نکل آئی، اور پھر ہم واپس حربیہ آ گئے، اور بغداد میں اب میری توقیر پہلے کی نسبت خاصی بڑھ گئی تھی۔ عالم سوما سے میرا رابطہ اب تک بحال تھا اور تعلیم جاری تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اپنے آخری مراحل میں تھی، اور سوما سے میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ اور اگلے روز وقت مقررہ پر جب میں اس کے پاس پہنچی تو بولی، اے سوما، تو نے مجھ سے ایک ایسے عمل کا ذکر کیا تھا جو مختلف زمانوں اور نئے جہانوں کی سیر کرا سکتا ہے، اور وہ گزرے ہوئے زمانے بھی ہو سکتے ہیں اور آنے والے زمانے بھی۔ تو نے بتایا تھا کہ وہ عمل صرف جنات کر سکتے ہیں، اور اسی عمل کے ذریعے دنیا میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کی آگاہی بھی میرے لیے دشوار نہ ہوگی۔ اور تجھے یاد آیا؟ ہاں کیوں نہیں دینار، مجھے سب یاد ہے، تو بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے، اور میں وہ عمل کرنا چاہتی ہوں۔ اور سوما کچھ دیر چپ رہا اور پھر بولا، اچھا تو عمل شروع کر، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو پھر کل رات، اور میری بات پوری نہ ہوئی تھی کہ آرج بول اٹھا، اے سوما، ہم تجھے کل سوچ کر بتا دیں گے۔ اور سوما کو اس پر کیا اعتراض ہوتا، البتہ مجھے آرج کی مداخلت اچھی نہ لگی، اور اس وجہ سے جب تعلیم کا وقت ختم ہوا اور میں کھنڈرات سے نکل کر آرج کے ساتھ صحرا میں پہنچی تو اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تجھے آخر میری بات کاٹنے کی کیا پڑی تھی؟ کیوں، کیا مجھے تجھ پر کوئی حق نہیں اے دینار؟ ابھی میں نے تجھے یہ حق دیا کب ہے؟ اور میں نے اسے جان بوجھ کر چڑھایا۔ تو مجھے ٹھیک ہے، اب میں تیرے بیچ میں نہیں بولوں گا، اور تو جانے اور سوما مجھے کیا، اور ناراض ہو گیا کیا؟ دینار، تو بات ہی ایسی کرتی ہے کہ دوسرا چڑ جائے۔ اس رات خاصے بحث و مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ آئندہ رات سے مجھے وہ عمل شروع کر دینا ہے، اور جس کی تکمیل کے بعد صرف اپنے ارادے کے بل پر میں ماضی یا مستقبل میں سفر کر سکتی تھی۔ اور آرج فوری طور پر اس عمل کے لیے تیار نہ ہو سکا۔
वो अमल भी 40 दिन का था और ये इस तरह गुजर गया कि पता ही ना चला। और आलम सूमा ने मेरे लिए एक सवाल के जवाब में वजाहत की, ऐ दीनार, वक़्त के जिस लम्हे से तू माजी या मुस्तकबिल में जाएगी उसी में लौट कर आएगी। और इस पर आरज खुश हो गया और धीमी आवाज में मुझसे कहने लगा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ और मुझे तुझसे जुदा नहीं रहना पड़ेगा। और किस्सा गो मुझे माजी के एक अहद की सैर गोया करा ही चुका था और तो मुझे तजस्सुस था तो आने वाले ज़माने का। उसके लिए मुझे मुस्तकबल की सैर करनी थी और फिल वक़्त कहाँ ठहरूं। और मैंने उसमें भी देर ना लगाई और मुझे जहाँ तजस्सुस महसूस हुआ वहाँ रुक गई और मैंने जो कुछ देखा और मेरे इल्म में आया बयान करती हूँ। अयोध्या अब सिर्फ चंद कोस की मुसाफत पर रह गया था और इसलिए शाही कासद ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। दाएं बाएं चलने वाले घुड़सवारों ने भी ऐसा ही किया और उनके चेहरों से अब इत्मीनान झलक रहा था। सूरज तुलू हुए खासी देर हो चुकी थी और सर्दी का जमाना था और धूप उन्हें भले ही लग रही होगी। और शाही कासद हिंदुस्तान के फरमारवा ज़हीरुद्दीन बाबर का एक अहम फरमान लेकर उर्दू के मुगल हाकिम मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के पास जा रहा था। हाकिम उद उन दिनों अयोध्या आया हुआ था और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा बाबर के अहले खानदान में था और बाबर उसे अपने बेटों की तरह अजीज रखता और रिश्ते में वो बाबर का भतीजा और हुमायूं का चचाजाद लगता था। और हुमायूं का अम उम्र होने के बावजूद मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा आलम जवानी में भी बड़ी सूझबूझ का मालिक था और शजाअत उसे विरसे में मिली थी। पानीपत के मैदान में जब बाबर का मुकाबला इब्राहिम लोदी से हुआ था तब भी मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा साथ था और दाएं जनब मीमने पर बाबर का फरजंद हुमायूं था और बाएं जनब मीसरे पर मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा था। उस जंग में बाबर के 12,000 फौज के मुकाबल तकरीबन 1 लाख का लश्कर था और उस 1 लाख के लश्कर में लड़ाका राजपूत भी शामिल थे। और उसका सबब यह था कि ग्वालियर का राजा बकरमा जीत भी इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था। लोदी फौज की ज़बरदस्त बालादस्ती को गैर मुनस्सर बना देने की सिर्फ यही सूरत थी कि किसी ऐसे मकाम पर जंग लड़ी जाए जो अपने जाए वकू के एतबार से मुगल फौज के लिए मुनासिब हो। और बाबर ने इसीलिए बराह रास्त दहली का रुख नहीं किया और पानीपत को मुंतखब किया। इब्राहिम लोदी की फौज पानीपत के जुनूब में थी और बाबर की फौज आसानी के साथ 2 मंजिल तय करके पानीपत की आबादी में दाखिल हो सकती थी और यूं वो पानीपत के घरों और इमारतों को अपने दाहिने बाजू के लिए बतौर पनाह इस्तेमाल में ला सकती थी। बाबर ने एहतियात के साथ अपनी फौज की तरतीब का मंसूबा बनाया और खादम चमड़ी की रस्सियों से बंधे हुए 700 छकड़ों का काम में लाकर उसने अपने कमज़ोर महाज को कसरत तादाद से बचाया और हर 6 या 7 छकड़ों के बाद एक दिफाही पुश्ता था और जहां तो पच्चियों और बंदूकियों को मुतय्यन किया गया। और ये तमाम तैयारियां करने के बाद बाबर 2 मंजिल आगे बढ़ा और 12 अप्रैल 1526 को पानीपत पहुंच गया। शहर पानीपत से उसने दाहिने बाजू को हिफाजत मुहैया की और बाएं बाजू की हिफाजत एक खंदक खोद कर और कटे हुए दरख्तों की मोर्चाबंदी के जरिए की गई और दिफाही पुश्तों और छकड़ों की एक कतार के जरिए कल्बे लश्कर को तकवीत पहुंचाई गई। लेकिन सफ़ों में जो कुछ दूरी पर खाली जगह छोड़ दी गई जो इतनी चौड़ी थी कि 50 या 100 घुड़सवार उसमें निकल कर हमला आवर हो सके और ये कतार दिफाई से ज़्यादा एक जारहाना तदबीर थी। इसका मकसद ये था कि दुश्मन की सफ़ों को एक लंबे महाज पर उलझाए रखा जाए ताकि उसकी फ़ौज के दोनों किनारों पर बाआसानी हमला किया जा सके। और 12 अप्रैल के बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक इब्राहिम लोदी की फ़ौज जंग का आगाज़ किए बगैर मैदान में खड़ी रही और बाहिम्मत बाप का बुज़दल बेटा खुद आगे बढ़कर हमला आवर होने का हौसला न कर पाया। और 19 अप्रैल को खुद बाबर ने पेशकदमी की, मगर ये पेशकदमी महज दिखावा थी और बहरहाल चंद दिनों के बाद जंग शुरू हो गई। बिल्कुल घुटी हुई एक जमात में जकड़े होने के बाद इब्राहिम लोदी की फौज न आगे बढ़ सकती थी और न पीछे। और सुबह 6 बजे जंग शुरू हुई और दोपहर तक इब्राहिम लोदी की फौज हौसला हार गई और मैदान जंग लाशों से ढक गया और उन्हीं लाशों में इब्राहिम लोदी की लाश भी थी और ग्वालियर के राजा बकरमा जीत की लाश भी। और इब्राहिम लोदी के सिवा हिंदुस्तान का कोई मुसलमान फरमारवा मैदान जंग में नहीं मारा गया। और सल्तनत दिल्ली की पैदाइश 1192 में हुई थी और मकाम तराइन का मैदान था। उसी सल्तनत ने 1526 में चंद मील दूर पानीपत के मैदान में आखिरी सांस लिया।
बाबरी शहसवार मगलूब लोधी फौज और हवास्ता बाख्ता राजपूतों के ताक़ब में क़याम अजल बने हुए थे और अपने घोड़ों को दौड़ा रहे थे। इसी तगदो में बाबर की नज़रें इब्राहिम लोधी की लाश पर पड़ी और उसका दायां हाथ बुलंद हो गया और बहादुर लश्करों ने अपनी बागी खींच ली और फतह के ऐलान के साथ ही उमरा ने तो हिम्मत मुबारकबाद दी और बाबर ने उसी रोज़ आगरे की तस्खीर और दहली के ख़जाना जवाहर की ज़ब्ती के लिए अहकाम जारी किए और वहीं से उसने हमायूं को तो आगरे के लिए रवाना किया और ख़ुद मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा नीज़ देगर उमराव लश्कर के साथ दहली की तरफ कूच कर गया और आगरे के किले पर उस वक़्त तक ग्वालियर के राजा बकरमाजीत के आदमी काबिज थे, हालांकि राजा मारा जा चुका था। बोलो बिजरंग बली की जय और बोल श्री रामचंद्र जंद्र की जय और यात्रियों की जय जयकार से पहाड़ी गूंज रही थी। एक दुबला पतला पिंडत निस्बतन एक बुलंद जगह पर खड़ा हुआ ये नारे लगवा रहा था। ये जगह शिकस्ता मंदिर के करीब थी और जिसे सीता माई की रसोई कहा जाता था। यात्रियों में ज्यादा तादाद साधुओं की थी और जिनके सर और दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे और मंदिर के दर्शन करके यात्री कहीं भजन गा रहे थे और कहीं नारे लगा रहे थे और कहीं पूजा पाठ में मसरूफ थे। ज्यादा हजूम उस चबूतरे के गिर्द था जिसे रामचंद्र जी की जाए पैदाश बताया जाता था। उन्हीं यात्रियों में मुख्तलिफ उम्र की औरतें और नौजवान दो शेजाएं भी थीं और एक साधु जाने क्यों उन औरतों और दो शेजाओं में दिलचस्पी ले रहा था और जिधर भी उसे औरतें नजर आती किसी छल्लावे की तरह वहां पहुंच जाता और दराज कद साधु के हाथ में चिमटा था जिसे बजा बजा कर वो औरतों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता। मगर उसकी बेचैनो बेकरार नजरें किसी एक चेहरे पर ज्यादा देर नहीं ठहरती और ये पहाड़ी जो रामकोट कहलाती थी उससे उतरने के लिए पत्थरों को काट कर सीढ़ियां बना दी गई थीं और दराज कद साधु अब उन्हीं सीढ़ियों की तरफ आ रहा था और उससे आगे कुछ फासले पर दो नौजवान लड़कियां और एक मतवसत उम्र की औरत जा रही थी और वो औरत उन लड़कियों ही के साथ थी। दोनों लड़कियां खूबसूरत थीं मगर औरत उन दोनों से कहीं ज्यादा हसीन थी और लड़कियों का हुस्न उसके सामने मंद पड़ गया और सांवली रंगत में अजीब सी कशिश थी और वह सफ़ेद साड़ी बांधे हुए थी और जूड़े में बेले के फूलों का हार लिपटा हुआ था और कद लंबा और जिस्म अकहड़ा था और वह अपने साथ चलने वाली दो शेजाओं से आहिस्ता आवाज में कह रही थी, देख लो वो आज भी हमारा पीछा कर रहा है। और लड़कियों ने मुड़कर साधु को नहीं देखा और उनमें से एक औरत को मुखातब किया, तो क्या हुआ राधा जी, हम आज भी उसे जल देकर निकल जाएंगे, पर ये टूटना ही क्यों पाला जाए। और औरत का लहजा मैंने खेल था और क्या खबर वो कौन है और जरूर कोई गड़बड़ जान पड़ती है और मैं आज बात करूंगी आचार्य जी से। और दराज कद साधु कुछ फासले से उन तीनों के पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगा और दरमियानी फासला इतना था कि वो अपने बारे में होने वाली गुफ्तगू नहीं सुन सका और अभी उसने निसफ सीढ़ियां तय की होंगी कि नीचे से एक जोगी ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया। साधु उसे देखकर चौंक उठा और जोगी सांवली औरत के करीब से बेनियाजाना गुजरता हुआ साधु तक पहुंच गया और साधु के पास से जब उसका गुजर हुआ तो वो बड़बड़ाया, इनके पीछे ना जा, तुझे देख लिया गया है। और फिर जोगी ओम हरि राम का जाप करता हुआ आगे बढ़ गया। सीढ़ियां उतरते उठते रुक कर साधु ने जोर से चिमटा बचाया और वहीं सीढ़ियों से जरा हटकर एक पत्थर पर आसन जमा के बैठ गया। और इस बार सांवली औरत राधा ने उसे मुड़कर जरूर देखा था और उसके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे। और उसी शाम वो जोगी आबादी से दूर एक खंडर में किसी की आमद का मुंतजर था और जब शाम के साए फैलकर रात की तारीकी में मदगम होने लगे तो उसने खंडर में किसी के कदमों की चाप सुनी और चौकन्ना हो गया। उसने अपने कांधे पर पड़ी हुई झोली आहिस्ता से उतार ली और उस झोली में मौजूद खंजर के दस्ते तक उसका हाथ पहुंच गया। जरूरी नहीं था कि आने वाला वही होता जिसका उसे इंतजार था। तुम आ गए। और करीब एक भारी आवाज आई। जी जोगी ने उसे आवाज को पहचान कर फौरन जवाब दिया और अपना हाथ झोली के अंदर खींच लिया। कारगुजारी बयान करो। और अंधेरे में वही भारी आवाज फिर गूंजी। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला और जो हुलिया और खदोखाल बताए गए थे उस पर बड़ी हद तक एक सांवली औरत राधा पूरी उतरती है। और साधु बताने लगा, मगर वो बहुत चालाक मालूम होती है। मैंने उसके पीछे अपना एक बंदा लगाया है लेकिन वो खटक जाती है और आज सुबह रामकोट में भी ऐसा ही हुआ और मैंने उसका ताकब रुकवा दिया। और एक तो ये कि वो कई दिन से गायब होकर कहीं नजर आती है और फिर गायब हो जाती है और उसका नाम भी राधा है।
وہ نام بدل بھی سکتی ہے، کوئی اور خاص بات؟ آج اس کے ساتھ جو 2 شیزائیں نظر آئیں ان میں سے ایک کچھ دن سے پہلے اس وفد میں شامل تھی جو آچاریہ ہرگوپال حاکم اورد کے پاس لے کر گیا تھا، اور اب ان تینوں میں سے جو بھی جہاں دکھائی دے اس کی کڑی نگرانی کرو اور تعاقب کے لیے آدمی اور حلیے بدلتے رہو۔ آچاریہ ہرگوپال پر بھی نظر رکھو، اور ان دونوں لڑکیوں اور رادھا کے بارے میں تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے ان پر ہاتھ بھی ڈال سکتے ہو، مگر اس طرح کے کسی کو خبر نہ ہو۔ اس کے لیے تم کیا طریقہ واضح کرو گے یہ تم پر چھوڑا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ ان سے کیا معلوم کرو گے، اور ضروری ہوا تو بقیہ ہدایات تم تک پہنچ جائیں گی۔ خدا حافظ۔ اور اسی کے ساتھ قدموں کی دور ہوتی ہوئی آواز سنائی دینے لگی، اور وہ جو کوئی بھی تھا واپس جا رہا تھا، اور جوگی وہی بیٹھا رہا اور پھر خاصی دیر کے بعد اس کھنڈر سے نکلا۔ آج بھی حاکم اورد اور محمد سلطان مرزا خلوت میں آچاریہ ہرگوپال سے گفتگو کر رہا تھا، اور آچاریہ ہرگوپال کی شخصیت نے اسے بہت متاثر کیا، اور وہ یہ سن کر بہت متاثر ہوا تھا کہ آچاریہ ہرگوپال عربی، فارسی اور سنسکرت تینوں ہی زبانوں پر امور رکھنے کے علاوہ ترکی زبان بھی جانتا ہے، اور سلطان مرزا کی تعلیم بس واجبی ہی سی تھی۔ اسے میدان جنگ سے کم ہی فرصت ملی، اور یوں بھی اسے مطالعے کا شوق نہیں تھا، اور وہ قلم کا نہیں تلوار کا دھنی تھا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ پڑھا لکھا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آچاریہ ہرگوپال نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہندو دھرم دراصل اسلام ہی کی بنیادی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو عہد قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور اس رات دیر ہو چکی تھی اور سلطان مرزا کو نیند آنے لگی۔ اس لیے اس نے آچاریہ سے کہا تھا کہ اس موضوع پر اگلی صبح میں گفتگو ہوگی، اور چلتے چلتے آچاریہ نے کہا کہ رام اور رحیم سب ایک ہی ہیں، اور ہر مذہب کی بنیاد روح ایک ہے۔ اور سلطان مرزا اتنا تو بہرحال جانتا تھا کہ ہر مذہب ایک نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان ایک مذہب کے ماننے والے ہوتے، اور بچپن سے اسے جو تعلیم دی گئی تھی اس کی روشنی میں اسے یہ علم بھی تھا کہ آسمانی کتابوں میں قرآن حکیم کے سوا سب میں تعریف کی گئی ہے، اور قرآن کے سوا کوئی اور آسمانی کتاب مستند و معتبر نہیں، اور اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات سے وہ آگاہ تھا، اور اسی وجہ سے آچاریہ کی بات اور دعویٰ اسے کھٹکا، اور اسی بنا پر آچاریہ سے متاثر ہونے کے باوجود وہ اس کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کر سکا تھا۔ آچاریہ سے آج اس وضاحت مطلوب تھی، اور اسی وقت آچاریہ ہرگوپال سلطان مرزا کے اس سوال کا جواب دے رہا تھا کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی اور کب سے، اور نیز یہ کہ اگر ہندو دھرم اسلام کی بنیادی تعلیمات کا نتیجہ ہے تو پھر بت پرستی کیوں کی جاتی ہے۔